पढ़ो। Chapter number 24, punctuation. Punctuation consists of a mark that we add to our writing, our writing, so that it is better understood. Sorry. Full stop, comma, question mark, and exclamation mark, etc. are called marks of punctuation. Full stop. We use full stop at the end of sentence that is statement or a command, an advice or a request. First, I need a glass of water. A statement. Can bring a glass of water for me. A command. You should drink clean water. An advice. Oh, please bring me a glass of water. A request. Question mark. We use question mark at the end of the sentence that asks a question. Do you play chess? We which is your favorite sport? Exclamation mark. We use exclamation mark at the end of a sentence that is expressing the strong emotion or a sudden feeling. What a catch! How active the player looks. Comma. The comma stands for a short pause in a sentence and give a clear meaning to the sentence. It has a different uses. First, we use the comma to separate words or phrases in a sentence. There are a living room, three bedroom, two balcony, two bathroom, and a kitchen in our house. This this store sells soft toys, school bags, stationery, and books. Note: we do not use the comma before and. We use the comma to separate a noun that is being the addressed. Nisha, please go and get some stickers. Where have you kept the book, Rajni? We use the comma to separate words such as yes, no, well, and oh in a sentence. Yes, I will attend the meeting tomorrow. No, I have not seen the movie yet. Well, let me explain how this new system works. Oh, I see. What do you mean now? It's more, it makes more sense. We use the comma to separate the words such as however, in effect, and at last. She was tired, however, she still managed to finish her work on the time. The exam was challenging. In fact, it was the most difficult one I have. है ना? I have I have ever taken. At last, they found. At last, they found the missing keys after the hour of searching. आर से Hours. वो Sorry, hours. We use the comma to separate question tags. We had a great time, had not we? She कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही बोल हैडंट वी। ये क्वेश्चन टैग had होता है। क्वेश्चन टैग को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही बोलते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में ही बोला जाता है। इजंट सी, हैडंट वी, ऐसे। आरंट यू, इजंट यू, इजंट सी। बोल आगे पढ़। she is a talented singer, isn't she? Apostrophe. We use the apostrophe in the two way to show possession. Sarah is a talented musician. Musician. म्यूजिशियन। Musician. I love listening to her band's music. The restaurant menu rated menu menu ported फीचर्ड। feature फीचर्ड।
featured a wide variety of dishes. To write short form, I am, I apostrophe am. He will. एपस्ट्रॉफी ऐसे लगाते हैं जैसे आई एम को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना शॉर्ट फॉर्म में, तो आई एपस्ट्रॉफी एम, ये आई एम हो गया। ही विल को ऐसे लिखते हैं ही एपस्ट्रॉफी एल एल। दे हैव को दे एपस्ट्रॉफी वी ई। डोंट को डी ओ एन एपस्ट्रॉफी टी। आई एम, ही विल, दे हैव, डोंट, ऐसे बोलेंगे इसको। कुकु पढ़ा। ये दो तो हो गए। Inverted commas. We use the inverted commas to show or indicate the beginning and the ये जो हाँ। बीच में inverted comma के बाद जो थर्ड लाइन में पहले लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमा के बाद 3 डॉट और उससे ऊपर भी 5 डॉट के उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। इन डॉट्स का मतलब क्या है? इन डॉट का कोई मतलब है, लेटर है? इन डॉट का मतलब है यहाँ वर्ड्स लिखे जाएंगे, सेंटेंस का पार्ट सेंटेंस लिखा जाएगा। कोई फ्रेज, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस। कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई लेटर भी, एक लेटर भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, एक क्लॉज भी हो सकती है, फ्रेज भी हो सकती है, पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। पढ़ो आगे। हाँ। Inverted commas. We use the inverted comma to show the indicate beginning and the end of the actual word spoken by a person. Mary said, I will be there at 3 o'clock. Please pass the salt, he asked. Capital letter. We use capital letter in many ways. First, the first word of every sentence starts with a capital letter. The horse galloped swiftly. Our new house has a lovely garden. Third, first or second, in first word of a line of poetry, something starts with a capital letter. In a jungle, oh, so wild, lived a monkey, mischievous, mischievous, मिस्चीवियस। mischievous, and reeled with a twinkle in his eyes, a gilling in his voice. He loved to play. It was his choice. Third, all proper nouns start इसमें with क्या a बताया है? पॉइंट नंबर सेकंड को समझा। हाँ, कभी कभी जो है हमारे पोइट्री का मतलब बता दो पापा बस। पोयम, पोयम जो होती है इंग्लिश की, पोइट्री बोलते हैं उनको। हाँ, पोयम की लाइन में कभी कभी बीच में भी कैपिटल लेटर्स का यूज होता है। बीच में कहाँ लिखा है? स्टार्ट तो लिखा है, स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। हाँ, बिटवीन। स्टार्ट्स के जो ये बोल रहा है कि अगर कोई पोयम है उसकी फर्स्ट लाइन में ना पहला लेटर कैपिटल होता है। फर्स्ट लाइन नहीं, सारी लाइनों में जितनी भी उस पोइट्री में लाइन होती हैं उन सभी लाइनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये लिखी हुई है। हाँ, तो लाइन सभी की लाइन बात का कर रहा है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए लाइन ऑफ पोइट्री, पोइट्री की लाइन का फर्स्ट लेटर समटाइम्स कभी कभी कैपिटल से होता है। जैसे इस वाली पोयम में देख, सारी लाइनों का फर्स्ट लेटर, सारी लाइनों में फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर सब में कैपिटल बनाया है। इनका, लिव्ड का, विद का, ही का, ये कह रहा है। समटाइम्स मतलब कभी कभी ऐसा होता है जब पोयम लिखता है राइटर, पोइट, तो वो अपनी जितनी भी लाइनें होती हैं उस लाइनों में जो पहला वर्ड होता है उन सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल बना देता है। अगला पढ़ो। हाँ, फोर्थ सॉरी थर्ड, all proper nouns start with a capital letter.
बता, हिंदी फोर्थ, बता इसकी थर्ड की। जो थर्ड नंबर बोल रहा है कि जो सभी प्रॉपर नाउन होते हैं, सभी प्रॉपर नाउन यानी कि किसी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी भी चीज का नाम हो, वो हमेशा फर्स्ट वर्ड उसका कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा, वर्ड तो पूरा रहता है ना। हाँ, तो लेटर फर्स्ट लिखा वर्ड का है, कैपिटल लेटर होगा, विद कैपिटल लेटर शुरू होगा, वो नाउन। प्रॉपर नाउन होते हैं जो नेम्स होते हैं, जैसे किसी बॉय का नाम है राम, तो राम प्रॉपर नाउन है, लेकिन बॉय क्या है, बॉय कॉमन नाउन है। गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन शिवानी, शिवानी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो नाम है किसी लड़की का, किसी एक लड़की का, ऐसे। तो जो हाँ, प्रॉपर नाउन होते हैं वो तो सिखाया है ना, जैसे ताजमहल, काम का बात बिल्डिंग का, बोलता है। बिल्डिंग का नाम है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा, ताज का टी कैपिटल, महल का एम कैपिटल। दी जंगल काम का बुक, पास। वो बुक का नाम है तो द जंगल बुक, द का टी, जंगल का जे, बुक का बी कैपिटल बनेगा। वो बात बताइए इसमें। फोर्थ पर, हाँ बोल मानवी। शाम का बात पता है, आपने वो शिवानी नाम बोला था ना, तो हमारी बस में एक दीदी का भी है शिवानी नाम। है। जो आपने शिवानी नाम बोला था ना, वो हमारी बस में एक दीदी का भी है और एक टीचर का भी है। हाँ पढ़ो, फोर्थ पॉइंट पढ़ो। Fourth point, we always write pronoun I and the interjection O with a capital letter. हम जो हैं I को कैपिटल बनाते हैं, I जो है प्रोनाउन उसको कैपिटल बनाते हैं जब वो अकेले, वैसे तो I अकेले ही आता है, उसको हमेशा कैपिटल ही बनाएंगे, और O को भी हमेशा कैपिटल बनाएंगे, इंटरजेक्शन है वो, जैसे आई कि हमेशा, सिमी एंड। तूने कहा आई हमेशा अकेला ही आता है, अकेला क्यों आता है? सिम्मी में जो आई है उस एस के, एम एम आई के साथ दो बार आई आया, एस और एम के साथ नहीं आया। आता है नहीं, मतलब जैसे कहीं अकेले अकेले, जैसे अरे एम में जब आता है। ये आई प्रोनाउन, सीधा सीधा तो लिखा उसने प्रोनाउन आई, जब आई प्रोनाउन होता है जो आई, उसको कैपिटल में लिखा जाता है। जो आई प्रोनाउन होता है उसने लिखा, तो वी ऑलवेज राइट द प्रोनाउन आई। जो प्रोनाउन होता है आई वी यू दे में से जो आई प्रोनाउन है उसको कैपिटल में लिखते हैं हमेशा, भले वो सेंटेंस के बीच में आए या कहीं भी आए, पीछे आए आगे आए। और जो एक इंटरजेक्शन होता है ओ, जैसे ओ गॉड, ओ जो इंटरजेक्शन है वो भी, जैसे हुर्रे, एलास, ओ, ओ हाउ ब्यूटीफुल द सनसेट लुक्स, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। ये इंटरजेक्शन होते हैं, हुर्रे, ओ, वाओ, ग्रेट, एलास। ये, इनमें जो ओ है इंटरजेक्शन वो, और जो प्रोनाउन आई है, ये हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं, ये बोल रहा है बस ये। Simmy and I went to the store. Oh, how beautiful the sunset looks. Fifth, all nouns and pronouns that indicate God usually start with a capital letter. जो नाउन और प्रोनाउन रहते हैं जो इंडिकेट करते हैं गॉड को, वो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे कि गॉड का जी कैपिटल है, द एलमाइटली का ए कैपिटल है, द लॉर्ड का एलमाइटली, एलमाइटली कहाँ है? सेकेंड पॉइंट में द पढ़ ध्यान से, एलमाइटली है, आखिरी में ली है क्या? एलमाइटी। ऑल माइटी बोलते हैं इसको, ऑल माइटी मतलब भगवान के लिए, ऑल माइटी जो मेरा सब कुछ है, गॉड, ऑल माइटी, लॉर्ड, ये सब भगवान के नाम है इंग्लिश में, गॉड, ऑल माइटी, लॉर्ड। आईटी का मतलब। बोल तो रहा हूँ, ऑल माइटी का मतलब गॉड। अच्छा। Six, name of the book and important word of the heading start with a capital letter. जो हमारे कोई बुक्स का नाम हो या फिर कोई हेडिंग का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, जैसे कि एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, द मॉर्निंग वॉक। ये जो है इनके, ये एलिस, ये जो है ये एक बुक का नाम है, और द मॉर्निंग वॉक ये एक क्या है, हेडिंग है, हेडिंग का नाम। हेडिंग है मतलब टाइटल है।
कैपिटल है। चैप्टर का नाम है, टाइटल है, तो इसलिए तीनों वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेंगे, टी, एम और डब्ल्यू। हम्म। Exercise. Rewrite these given sentences using correct punctuation mark. हम्म First, what a beautiful colorful sunset that is. ये होगा what a beautiful colorful, और फिर ये क्या बोलते हैं इसको नीचे जो आता है, पूछना पड़ेगा, एक मिनट बस। हाँ, what a beautiful colorful sunset that is के बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि बहुत एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा इसमें, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हम और बता पापा रहे एक हैं। एक चीज और पापा, इसमें इसमें W जो है व्हाट का W का फर्स्ट लेटर कैपिटल। हाँ, एक मिनट। तो इस जो लाइन लिखी है ना उसमें लिख लो, अभी मत लिखो, अभी बस वही चीज़ लिखो जो जो चेंज करनी है, जैसे वॉट का WHAT, बस इतना लिख लो, बाकी तो सब सेम रहेगा। वाट आ ब्यूटीफुल कलरफुल सनसेट दैट इज, आखिरी में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा दो। सेकंड नंबर, दे, देखो 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 देखो, दे और हैव लिखा है, इसमें VE के पहले एपोस्ट्रोफी लगाना है। हाँ, टी और कैपिटल बनाना है। हाँ, वही बोलने वाली थी पापा। हैवंट के बीच में एक्सक्लेमेटरी मार्क, सॉरी एपोस्ट्रोफी लगाना है। दे हैव ऑलरेडी फिनिश दिया होमवर्क, हैवंट दे, होमवर्क के बाद कॉमा लगाओ, और हैवंट, एन और टी, एन और टी पे एपोस्ट्रोफी लगाओ, हैवंट, और फिर लिखना पड़ेगा दे, हैवंट दे, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा दे एपोस्ट्रोफी VE, दे का कैपिटल टी, दे हैव, इसको ऐसे ही बोलेंगे, दे हैव ऑलरेडी फिनिश दियर होमवर्क, कॉमा, हैवंट दे, हैवंट में एन और टी के बीच में एपोस्ट्रोफी, और फिर दे लिखना पड़ेगा और क्वेश्चन मार्क। अगले में आई प्रोनाउन को कैपिटल बनाना पड़ेगा, थर्ड में आई हैव विजिटेड माई कंट्रीज। कनाडा, फ्रांस और जापान का फर्स्ट लेटर कैपिटल तीनों का। हाँ, ये तीनों देश के नाम है, कैपिटल बनेंगे, कैपिटल C, कैपिटल F, कैपिटल J, और आखिरी में फुल स्टॉप। आई हैव विजिटेड मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा, फ्रांस एंड जापान। कनाडा और फ्रांस के बाद बीच में बेटा कॉमा भी लगेगा, यहाँ देखो, लगा दिया है। कनाडा कॉमा फ्रांस एंड जापान, जो एंड लगता है ना वो सबसे आखिरी वर्ड के पहले लगता है, उससे पहले जितने भी वर्ड होते हैं ना वो सब कॉमा से सेपरेट होते हैं। अगर जैसे इसमें दो चार और कंट्री के नाम होते हैं ना, जैसे आई हैव विजिटेड मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग USA,
कॉमा इंग्लैंड, कॉमा साउथ कोरिया, कॉमा चाइना, कॉमा साउथ अफ्रीका, कॉमा कनाडा, कॉमा फ्रांस एंड जापान। जो सबसे आखिरी बोलेंगे तब एंड लगाएंगे, बाकी सब उससे पहले जितने भी उनमें सब में कॉमा लगा देते हैं, समझी? पता है। आई हैव विजिटेड मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा, कॉमा फ्रांस एंड जापान। चलो अगला। ही का एच कैपिटल, ही क्लेम्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही क्लेम्ड, कॉमा inverted comma, he claimed, comma inverted comma, I am an expert swimmer but in fact he struggled in the deep water। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाओ वाटर पर, इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दो। ये डायरेक्ट हो गया ना, डायरेक्ट स्पीच। he claimed, comma inverted comma, I am an expert swimmer but in fact he struggled in the deep water। फुल स्टॉप फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब तुम पूरा लिख रही हो क्या? हाँ पूरे पूरे सेंटेंसों को लिख रही हो? हाँ, तो ऐसे तुम्हें बहुत देर लगेगी। मैं तो 5th पे चालू हूँ। ठीक है लिख लो, 6 ही हैं बस, 6 ही हैं, उसके बाद नहीं है। साफ बरोबर। साफ ध्यान से साफ साफ लिखना है। अब इसके बाद तो बहुत इजी चैप्टर है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इतना हम्म, इजी, इतना इजी, बहुत इजी। पापा इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा ना? किसमें? 5th वाले में लास्ट में। हाउएवर को भी कॉमा लगाएंगे। जॉहन्स, पहले जॉहन्स का जे कैपिटल, और जॉहन एन और एस के बीच में एपस्ट्रॉफी, क्योंकि पजेसिव केस बनाना है ना। जॉहन की कार है तो जॉहन्स कार बोलेंगे। जॉहन्स कार इज क्वाइट ओल्ड, कॉमा हाउएवर, कॉमा इट स्टिल रन्स स्मूथली, कॉमा इट स्टिल रन्स स्मूथली के बाद कॉमा, स्मूथली के बाद फुल स्टॉप, कॉमा नहीं फुल स्टॉप। मैं ये सोचू कॉमा कैसे आएगा। आखिरी में फुल स्टॉप आएगा। जॉन्स का जे कैपिटल बनाओ, एपस्ट्रॉफी एस बनाओ, जो एस आखिरी में, जॉन्स में एस जो उससे पहले एपस्ट्रॉफी लगाओ, ओल्ड के बाद कॉमा लगाओ, हाउ एवर के बाद कॉमा लगाओ। ऐसे ये लिखने के तरीका होते हैं सेंटेंसों को, इंग्लिश ऐसे ही नहीं आ जाती। सेंटेंस बनाने सीख गई आगे, उनको लिखना भी पड़ता है। लिखने में तुमने कहीं कॉमा नहीं लगाया ना, कहीं कैपिटल बनाया, उस कैपिटल नहीं बनाया, पजेसिव केस नहीं बनाया, एपस्ट्रॉफी नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो उसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं आता। 6 एट लास्ट का ए ए कैपिटल कैपिटल। हम्म और लास्ट में फुल स्टॉप। हम्म खत्म एट लास्ट द सेंटेंस। मिस्ट्री वाज सॉल्व्ड ऑफ द मिसिंग कीज। एट लास्ट के बाद कॉमा लगा दो। एट लास्ट द मिस्ट्री वाज, ये वाला कॉमा। एट लास्ट द मिस्ट्री वाज सॉल्व्ड
of the missing keys. Yes. मानवी। ठीक है। हाँ।